So in yesterday's lecture, we understood the like one of the type of demand elasticity, that is price elasticity. Elasticity talks about, right, change in the demand with respect to, right, change in the price. So it talks about by how much demand will change. It will talk about by how much demand will change, right, by change in the price by 1%. क्या बोला मैंने? Change in the demand with respect to change in the price of 1%. So like elasticity is 1. It means if price changes by 1%, demand will also change by 1%. If it is greater than 1, it means if price changes by 1%, demand will change by more than 1%, more responsive, more elastic. If price elasticity is less than 1, matlab hi, if price changes by 1%, elasticity will change or demand will change by less than 1%, less responsive, inelastic. If it is 0, means 1% change in the price brings 0% change in the demand. Demand is perfectly inelastic. And if it is infinite, right, it tends to infinity, iska matlab very small change in the price, like 1% brings infinite change in the quantity demanded. So always remember, आप कोई भी elasticity ले लो, it talks about 1% change. जब हम value देखते हैं, so 1% change in the variable, right, उसके वजह से demand में कितना percent change होगा. Then फिर मैंने, right, there was basically 5 types of price elasticities: relatively elastic, flatter curve, right, luxury goods के केस में होता है, like comforts के केस में relative elasticity होती है, price elasticity होती है. इसका मतलब if seller decreases the price, the volume will increase drastically, right. Small change in the price brings larger change in the quantity demanded, and by applying that principle, the businessman or the business manager should decrease the price, should give the discount, that the quantity demanded and sold will increase more than decrease in the price, and the total revenue will increase. How to use the elasticity in your business decisions? Try to understand. So relatively elastic demand matlab, or price elasticity is relatively elastic matlab, right, small change in the price brings larger change in the quantity demanded. Answer is greater than 1. Flatter curve in case of luxuries. ठीक है? Then if you check the impact of the change in the price on change in the expenditure for the buyer or change in the revenue for the seller, increase in the price decreases expenditure or revenue for the seller. अगर luxury goods के prices increase हो जाते हैं, we reduce the consumption, but on, right, अपना expenditure कम हो जाता है and seller का revenue कम हो जाता है, because my expenditure is my seller's revenue. If prices decrease हो जाती है, लोग, right, भीड़ करते हैं, they purchase more and more, and therefore हमारा expenditure increase होता है, and overall, right, total revenue of the seller increases. So the relation, try to understand. In case of price elasticity, मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाता हूं, ध्यान देना, and that is also one of the method of measurement of the price elasticity, right. First, expenditure method याद होगा, expenditure method of measuring price elasticity, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज वो कल मैंने उसका लाइक थ्रू डायग्राम्स मैंने वो एक्सप्लेन भी किया था. तो लिख लेना, एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, expenditure method of measuring price elasticity, measuring price elasticity. If we can relate change in the price with change in the expenditure, we can classify the goods, right, वो कौन से elasticity से belong करते हैं. So this is also called as revenue method. This is also called as revenue method. क्यों? Because buyer का expenditure seller के लिए क्या रहेगा? Revenue. So expenditure method is also
total expenditure method is also called as total revenue method. It talks about relation, right, between price and the expenditure or revenue. Then we can classify the goods into relatively elastic, relatively inelastic, or unitary elastic. So price of commodity, ठीक है, price of the commodity, total expenditure or revenue, impact on total expenditure or total revenue, price of the commodity, its impact on total expenditure and revenue. ठीक है, देखते हैं. Then price elasticity and nature of commodity. Nature of commodity. देखो हमने क्या देखा था, इंक्रीज इन द प्राइस, इंक्रीज इन द प्राइस इंक्रीज डिक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर. देखो क्या देखा था कल हमने, मैंने यहां पे लिखा भी था. फर्स्ट इलास्टिसिटी, रिलेटिवली इलास्टिक, व्हेन प्राइस वाज 10, total expenditure was 10,000. When price was 10, total expenditure was 10,000. When price increased to 15, expenditure decreased to 6,000. या उल्टा देखो, when price was 15, expenditure was 6,000. So when price was 10, try to understand, when price was 10, expenditure was 10,000. When you increase the price, expenditure decreased to 6,000. So relation between price and the expenditure is inverse. Try to understand, inverse है. या when I decrease the price, expenditure increased. जैसे डिस्काउंट मिलता है, people buy more and more and more, लग्जरी के केस में होता है. ऐसे केसेस में I say elasticity is greater than 1, that is relatively elastic. Relatively elastic. And this is luxuries, luxury goods. ठीक है. Second, when price increases, expenditure also increases. Like example, expenditure on your education, expenditure on health services, expenditure on milk, expenditure on electricity, expenditure on water bill. They are your necessities. Their prices increases, your expenditure also increases. Or revenue for the seller also increases. If price decreases, expenditure or revenue also decreases. Right? यहाँ पे relationship inverse है, यहाँ पे relationship direct है. Increase in the price increases expenditure, decrease in the price decreases expenditure. Answer is less than 1. That is relatively inelastic. Relatively inelastic. Relatively inelastic. And this is in case of which goods? This is in case of necessity goods. Necessities के लिए ये applicable होता है. देखो कल की डायग्राम, स्टीपर कर्व थी, राइट? दिस वाज सेकंड, रिलेटिवली इनइलास्टिक. देखो क्या हुआ था, when price was 10, when price was 10, expenditure was 10,000. 10 multiplied by 10,000. When price was 10, 1,000 units were purchased. So 10 multiplied by 1,000 is equal to 10,000. When price increased to 15, quantity demanded decreased to, right, 800. Quantity demanded decrease. आप upward move हुआ है डिमांड कर्व पे, upward movement है आपके डिमांड कर्व पे. So it is contraction in demand. Increase in the price results to contraction in the demand. Demand contracted to 800 units. However, 15
unit 15 price multiplied by 800 units, expenditure is 12,000. So increase in the price increases expenditure, decrease in the price decreases expenditure, right? उसके केस में ऐसे, right, the goods are relatively inelastic in the nature, necessities होता है, ठीक है. थर्ड, increase in the price or decrease in the price does not have any impact on the expenditure, expenditure revenue remains constant. मतलब वो एरिया, एक्सपेंडिचर का एरिया या रेवेन्यू का एरिया सेम रहता है फॉर एवरी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, द एरिया रिमेन सेम. एरिया, राइट, डिमांड कर्व गिव्स द एरिया, वो एरिया होता है एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू. अगर वो सेम ही रहता है मतलब दैट कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. एंड अगर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है मतलब उसके केस में इट इज रिलेटिवली, नहीं, इट इज यूनिटरी इलास्टिक. सो रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स सेम. इसको बोलते हैं इज इक्वल टू 1, ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक. यूनिटरी इलास्टिक देखते हैं यहां पे क्या लिखा है. थर्ड डायग्राम थी मेरी ये वाली, देखो किधर है वो, यस, ये वाली डायग्राम, यूनिटरी इलास्टिक. व्हेन प्राइस वाज 50, when price was 50, 400 units were demanded and sold. 50 multiplied by 400, 20,000 is expenditure or revenue. When price increased to 80, upward movement, it is contraction in demand. Demand contracted to 250 units. 80 multiplied by 250, total revenue or total expenditure is again 20,000. If price decreases to 40, आपने प्राइस कम की है ऑफ द कमोडिटी, डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड एक्सपांड हो जाएगी. यू विल मूव डाउनवर्ड ऑन द सेम डिमांड कर्व. सो जब प्राइस कम हो गई 50 से 40, डिमांड एक्सपांड हो गई 400 से 500 तक. सो द न्यू प्राइस इज 40, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड इज 500. 40 multiplied by 500, your total revenue or total expenditure is 20,000. So price 80 है तो भी expenditure 20,000, price 50 है तो भी expenditure 20,000, price 40 है तो भी expenditure 20,000. Irrespective of the price, expenditure or revenue remains same, the area remains same. It is rectangular hyperbola or 45-degree downward sloping curve. So I will say, right, that is unitary elastic. ठीक है, ऐसे प्रॉपर आई कैन नॉट से कि ये कौन से गुड्स रहेंगे, राइट. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहां पे हमने एक्सपेंडिचर मेथड भी डिस्कस की. एक्सपेंडिचर मेथड डज नॉट गिव यू एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इट जस्ट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द गुड्स बिलोंग्स टू विच कैटेगरी इफ ग्रेटर देन 1, बट एग्जैक्टली कितना ये आंसर नहीं देता. Expenditure method or revenue method of the elasticity does not give you precise answer. Just वो आपको कैटेगरी में डाल देता है, greater than 1, equal to 1 or less than 1. That's it. ठीक है. Expenditure method is also called as which method? Revenue method, because expenditure is someone's revenue. And if the relation between price and the expenditure is inverse, greater than 1, if price relation between price and the expenditure is positive, direct, inelastic, less than 1, and change in the price does not have any impact on the revenue or expenditure, I will be saying it is unitary elastic. Clear? So this is again important takeaway from that method. Then सो हमने 3 किए, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक. सो रिलेटिवली इलास्टिक में हमने क्या बोला? चेंज इन द प्राइस, स्मॉल चेंज इन द प्राइस ब्रिंग्स लार्जर चेंज इन द डिमांड. रिलेटिवली इनइलास्टिक में क्या बोला? राइट, लार्जर चेंज इन द प्राइस ब्रिंग्स स्मॉलर चेंज इन द डिमांड. यूनिटरी इलास्टिक में क्या बोलते हैं? चेंज इन द प्राइस ब्रिंग्स इक्वल चेंज इन द डिमांड.
So change in the demand upon change in the price is 1. Perfectly inelastic में हम बोलते हैं, perfectly inelastic में हम बोलते हैं whatever is the price, quantity demanded remains same. Quantity demanded is, right, I will say, is not responsive, not at all responsive to change in the price. So whatever is the price, higher रखो, lower रखो, कोई भी price रखो, quantity demanded remains same, and you get a vertical line which is parallel to y-axis or price axis. So change in the demand is 0 upon change in the price. 0 upon anything is 0, and therefore this is, right, demand curve having 0 slope. Demand curve having 0 slope. अगर कोई vertical line होती है, अगर आप ग्राफ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो, वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इट्स स्लोप इज ऑलवेज 0. देन फिर वो सब जहां पे वेरी स्मॉल चेंज इन द प्राइस, इफ यू इंक्रीज द प्राइस जस्ट बाय लिटिल, लाइक बाय सम स्मॉल परसेंटेज, योर डिमांड डिक्रीजेस इनफाइनाइटली. जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कोक एंड थम्स अप का, अगेन मैंने वो आपको बोला था कि वो दैट जो मैंने assumptions लिए थे वो समझने के लिए, those assumptions belongs to perfectly competitive market. So ये perfect elasticity का जो example है, that is applicable to perfectly elastic, right, perfectly competitive firm. Perfect competition में जो firm belong करती है उसकी price elasticity like infinite होती है. इसका मतलब if any seller increases the price by just small percentage, no one will buy from him, because in price elasticity you cannot, like in case of perfect competition, a firm is a price taker and not the price maker. इसलिए जो भी मार्केट ने प्राइस डिसाइड की है उसी प्राइस पे a seller can sell as much as he wants. He cannot alter the price. अगर वो प्राइस थोड़ा भी इंक्रीज करेगा, no one will buy from him, his demand will decrease. I should not say demand will decrease, I should say quantity demanded will decrease, because price change हो रही है, so my wording should be quantity demanded will decrease और demand will contract, ऐसे बोलना चाहिए. Demand will contract infinitely. But if it decreases price just by little bit, he can sell whatever he has. The demand increases infinitely. फिर demand increases नहीं बोलना चाहिए, quantity demanded increases infinitely और quantity और demand expands infinitely. Generally हम demand बोलते हैं, but जब price बोलते हो तो you should say quantity demanded, right, increase or decrease, or you should say demand expand or contract. आगे ऐसे. Then फिर मैंने कल यहाँ पे आके कंक्लूड किया, ये मेरा ग्राफ था जिससे मैंने पूरे पांचों इलास्टिसिटीज प्रेजेंट किए और मैंने कंक्लूजन निकाला, फ्लैटर द डिमांड कर्व हायर इज द इलास्टिसिटी. जितना फ्लैट होगा उतनी उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी. लाइक D5 डिमांड कर्व इज परफेक्टली फ्लैटर. इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और क्वांटिटी डिमांडेड एक्सिस. सो परफेक्ट फ्लैट है, इसकी इलास्टिसिटी सबसे हाईएस्ट होगी, दैट इज इनफाइनाइट होगी. Higher the, like flatter the curve, higher is the elasticity. Steeper the curve, lower is the elasticity. जितनी ज्यादा steeper होगी उतनी कम elasticity होगी. And D1 curve, D1 demand curve is perfectly flat, perfectly steeper, parallel to, right, price axis. उसके केस में elasticity क्या है? 0. Try to understand, when I say elasticity is infinite, मतलब इसका slope infinite होता है. When I say elasticity is 0, इसका मतलब इस कर्व का स्लोप 0 होता है. If I say elasticity is 2, इसका मतलब उस पॉइंट पे, right, elasticity is 2. Try to understand. Yeah, slope is 2. Elasticity में, right, is actually the slope. Next. ध्यान देते हैं. चलो. और फिर मैंने कल क्या बोला आपको? What is, right, price strategy or marketing strategy for a business? If you are dealing in relatively elastic commodity,
luxuries. So what should be your strategy? Decrease the price, your total revenue will increase. If you're dealing in necessities, relatively inelastic commodities, you know, right, कुछ भी हो आपकी commodity purchase ही करनी पड़ेगी customer को. He has no other option but to buy your commodity even if you sell at a higher price. आप उसको बोलोगे लेना है तो ले, नहीं तो मत ले. Are you getting my point? Example अभी कोविड में अगर आपको अच्छे जिसको like infection हुआ है, right, तो उनके लिए if you go to the good hospital, I think 4 या 5 days का कुछ तो 7 लाख या 8 लाख बिल आता है. That is the reality. गो पुणे में 7 to 8 लाख का बिल है 5 to 6 days एडमिट होने का. अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है तो मे बी फ्री में हो जाएगा, बट वहां पे फैसिलिटीज नहीं है एंड चांसेस ऑफ रिकवरी आर वेरी लेस. बट अगर आपको राइट अच्छी फैसिलिटी चाहिए, अच्छे डॉक्टर चाहिए, तो यू विल गो टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड वहां पे दे चार्ज इनॉर्मस अमाउंट बिकॉज दे नो राइट आप वहां पे गए हो मतलब आपके लिए वो नेसेसिटी है एंड दे चार्ज हायर प्राइस, स्टिल देयर डिमांड इज सेम. सो इन केस ऑफ right their elasticity is less than 1, relatively inelastic, they are necessities and therefore they charge enormous price, still people go there, get their treatment and pay higher prices. So unke case mein how can they increase the revenue? By charging higher price. So necessities walon ne kya karna chahiye? They should increase the price and their revenue will automatically increase. In case of unitary elasticity commodities, आप कुछ भी प्राइस रखो, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट रेवेन्यू, वो आपका हाईएस्ट रेवेन्यू होगा. आप लेट इट बी एनी प्राइस, आप ज्यादा प्राइस रखोगे तो डिमांड बराबर प्रोपोर्शनेटली कम होगी, योर रेवेन्यू विल रिमेन सेम. अगर प्राइस कम करोगे डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड प्रोपोर्शनेटली एक्सपांड होगी, राइट, रेवेन्यू विल रिमेन सेम. सो यूनिटरी इलास्टिसिटी के केस में राइट व्हाटएवर इज द प्राइस, टोटल रेवेन्यू रिमेन सेम. Then in case of your zero elasticity products, that is perfectly inelastic, means आप you cannot control the quantity demanded. आप quantity demanded को control कर ही नहीं सकते, but you can control the price. आप price कितना भी रखो, demand remains same, quantity demanded remains same. So what is the better way to increase the revenue? Charge higher price, because even after charging the higher price, the demand quantity demanded will remain same. So demand is same, multiplied by the higher price, total revenue will increase, sales will increase. Revenue matlab sales. And in case of perfectly right elastic commodities like perfect competitive firm, you cannot change the price, but you can change the demand or you can change the supply of your, like seller supply change कर सकता है उसका. So by accepting the price given by the market, he can sell more and more and more. ज्यादा सेल करने के लिए उसको प्राइस कम नहीं करनी पड़ती. बाकी मार्केट्स में क्या होता है, इफ यू हैव टू सेल मोर यू हैव टू डिक्रीज द प्राइस. ये लिख लेना, ये अभी बोलते बोलते एक पॉइंट आ गया इसलिए लिख लेना. मार्केट्स बेसिकली टू, ये बाद में भी मैं कवर करने वाला हूं बट अभी बात निकली तो लिख के देता हूं. बेसिकली टू मार्केट्स एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, एंड दूसरा होता है इम्परफेक्ट. इम्परफेक्ट जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते, इम्परफेक्ट कंपटीशन. इम्परफेक्ट के एग्जांपल्स, मोनोपोली, सिंगल सेलर, दो सेलर वाला डिओपोली, फ्यू सेलर्स वाला ओलिगोपोली, लाइक मैंने बोला था टेलीकॉम इंडस्ट्री, राइट, एविएशन इंडस्ट्री, ओलिगोपोली. सो जनरली इसमें 1 सेलर होता है, इसमें 2 सेलर्स होता है, इसमें 3 to 10 सेलर्स होते हैं. जनरली बोल रहा हूं, नॉट ऐसे स्टैंड 3 to 10 एक जनरली बोला जाता है. ठीक है, आगे नेक्स्ट
large number of sellers, monopolistic. ठीक है, so these are some examples. अब ध्यान देना मैं क्या लिख के दे रहा हूं. What is the demand curve of perfect competition firm? And what is the demand curve of imperfect competition firm? Perfect competition में demand curve is a parallel line to the x-axis. This is demand curve DD. And imperfect competition में demand curve is a downward sloping demand curve. जो आपने 12th में या लॉ ऑफ डिमांड में सीखा है, आप डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व निकालते थे, आपको पता नहीं था कि आप इम्परफेक्ट कंपटीशन की डिमांड कर्व निकाल रहे हो. वो जो हम लॉ ऑफ डिमांड 12th में लिखे थे और हम बोलते थे डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग. डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग फॉर व्हिच मार्केट? इम्परफेक्ट कंपटीशंस. डिमांड कर्व इज अ पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इज फॉर परफेक्ट कंपटीशन. यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है एंड यहाँ पे इलास्टिसिटी, राइट, आई कैन नॉट से जीरो होती है, राइट, बिकॉज जीरो के लिए मुझे एग्जैक्ट ऐसे वर्टिकल लेना पड़ेगा, राइट. बट जनरली वर्टिकल ऐसे कोई कमोडिटी नहीं होती कि परफेक्ट इलास्टिक नहीं होता है. जनरली हम बोलते हैं इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन जीरो, जनरली बोल रहा हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट, एंड लेस देन इंफिनिटी. अगर इन्फिनाइट हो गई तो परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा. इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी इन्फिनाइट हो गई तो कौन सा मार्केट हो जाएगा? परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा. ठीक है, जीरो जनरली नहीं होता है, मैं लिखा है इज इक्वल टू और लेस देन जीरो, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो, बट नॉट इक्वल टू इंफिनिटी, लेस देन इंफिनिटी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. सो ये जो फर्स्ट डायग्राम है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन के, दैट इज अ डिमांड कर्व ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. एंड सेकंड जो है दैट इज अ डिमांड कर्व, जो हम हमेशा देखते हैं डिमांड कर्व, दैट डिमांड कर्व इज ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन. मतलब वो मोनोपोली की हो सकती है, ओलिगोपोली की हो सकती है, डिओपोली की हो सकती है, मोनोपोलिस्टिक की हो सकती है. इसका मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू कैन सी क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3, क्वांटिटी 4. डिमांड कर्व फॉर द सेलर, उसके प्रोडक्ट की डिमांड. यहां पे देखो, दिस इज प्राइस, OP1 प्राइस, OP1, he decreased the price to sell more, to increase his demand. He again decreased the price, P3. डिमांड एक्सपांड हो गई, प्राइस कम होगी तो डिमांड एक्सपांड होगी, ठीक है, OQ3. He again decreased the price, P4. डिमांड एक्सपांड हो गई. व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? मैं यहां पे लिखता हूं प्राइस, डिमांड शेड्यूल लिख रहा हूं, प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. यहां पे भी वही लिखने वाला हूं, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. प्राइस इज OP, quantity demanded is OQ1. Price is OP, quantity demanded is OQ2. Price is OP, quantity demanded is OQ3. Price is OP, quantity demanded is OQ4. What you understand? In order to sell more, if you have to sell more, a perfect competitive firm, अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन से बिलोंग करता हूं, आई एम ए सेलर ऑफ ए परफेक्ट कंपटीशन फर्म,
परफेक्ट कंपटीशन में मेरी फर्म है, आई एम वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, वेरी वेरी फ्रैक्शन, मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट को, मेरे आने से जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता. If I have to sell more, I am not supposed to decrease the price. जनरली हम बोलते हैं अगर मुझे ज्यादा सेल करना है तो प्राइस कम रखनी पड़ेगी. दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू परफेक्ट कंपटीशन. प्राइस सेम है, स्टिल यू कैन सेल मोर. एंड यहाँ पे देखते हैं व्हेन प्राइस इज OP1, राइट, क्वांटिटी डिमांडेड इज जस्ट OQ. मतलब यू कैन, आपकी प्रोडक्ट के लिए डिमांड रहेगी OQ1, सो यू कैन सप्लाई ओनली OQ1. इफ प्राइस इज OP2, आपको ज्यादा सेल करना है, यू वांट टू सेल OQ2, तो यू हैव टू reduce the price to OP2. You have to sell more, OQ3 सेल करना है, you have to again decrease the price OP3. यहाँ पे हमें OQ4 सेल करना है, तो again I have to decrease the price OP3. Try to understand. और OP4 है, sorry, यहाँ पे. What you understand? In case of imperfect competition, which is a reality. In case of imperfect competition, which is a reality, right? In case of imperfect competition, which is a reality, ठीक है, I have to decrease the price to sell more. अगर आज एग्जाम्पल जो रियल मार्केट है वो इम्परफेक्ट मार्केट है, उसमें क्या होता है, अगर आपको ज्यादा सेल करना है यू हैव टू डिक्रीज द प्राइस. बट अगर वही परफेक्ट कंपटीशन में विदाउट डिक्रीजिंग द प्राइस स्टिल यू कैन सेल मोर, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन का राइट assumption ही है you can sell as much as you can at a given market price. You can sell as much as you want at a given market price. Price OP है, if I want OQ1 I can sell OQ1 at same price. If I want to sell OQ2 I can still sell OQ2 at same price. I want to sell OQ4 I can sell OQ4 at a same price, but that is not applicable or that is not the case in case of real market, imperfect market. If you have to sell more, you have to give the discount, you have to decrease the price. And उसके पीछे मैंने लॉजिक भी समझाया था, because consumer, right, जैसे जैसे उसके परचेसेस इंक्रीज हो जाएंगे, the utility that he gets decreases, the satisfaction decrease होगा, utility कम होगी, and a consumer will be always comparing utility with the price. वो ज्यादा परचेस करेगा तो यूटिलिटी कम होगी, अगर प्राइस ज्यादा है तो ही विल नॉट बाय, प्राइस भी कम करेगा, he will compare utility, then only he will buy. As he purchases more, the utility that he gets decreases, and consumer always compares utility with the price that he has to pay. Try to understand. As long as price is less than the utility that he derives, he will buy. Right? Price यहाँ पे, utility यहाँ पे, he will buy. सेकंड यूनिट पे और यूटिलिटी कम मिलेगी, बट प्राइस से यूटिलिटी ज्यादा है, बाय. थर्ड यूनिट पे प्राइस फिर भी कम है कंपेयर टू यूटिलिटी, ही विल बाय. फोर्थ यूनिट पे दे आर इक्वल, he will still buy because whatever that utility he gets is equal to price. But अब फिफ्थ यूनिट पे यूटिलिटी कम होगी and price is more. Try to understand. Now he has to pay this much, इतना पे करना है, price is ऊपर, but satisfaction that he gets is less. He will not buy it. वो यहाँ पे रुक जाएगा, बोलेगा I am in equilibrium. Consumer is in equilibrium when the marginal utility of the commodity is equal to price of the commodity. कंज्यूमर को अगर आपको फिफ्थ यूनिट परचेस करवाना है, कंज्यूमर की यूटिलिटी फिफ्थ यूनिट की वजह से डिक्रीज होगी. अगर आपको यूटिलिटी कम होगी, अगर उसको ये परचेस करवाना है तो आपको प्राइस कम करनी होगी, then only he will buy. Are you getting my point? If you have to prompt the consumer to buy the additional units once he is in equilibrium, equilibrium, consumer equilibrium में कब होता है, लिख लेना, consumer is in equilibrium when the price he pays is equal to utility that he derives. टॉप में लिख दो कंज्यूमर, ये मैंने पहले भी समझाया, लॉ ऑफ डिमांड के 4 रीजंस थे वहां पे. एक रीजन था, इफ यू रिमेंबर, प्राइस इफेक्ट विच इज इक्वल टू राइट योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट. दूसरा रीजन था लॉ ऑफ DMU. तीसरा रीजन था राइट एंट्री ऑफ न्यू कंज्यूमर्स एंड अल्टरनेटिव यूजेस. ऐसे 4 रीजंस थे फॉर द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. उसमें उस टाइम मैंने समझाया था कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम when the price he pays is equal to utility that he derives
प्राइस ऑफ कम्युनिटी एक्स इज इक्वल टू mu ऑफ एक्स, उस लेवल पे वो सेटिस्फैक्शन उसका मैक्सिमम रहेगा, ही इज इन इक्विलिब्रियम, एंड देयर ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, एट दैट पॉइंट ही विल स्टॉप द कंजम्पशन. अगर आपको उसको फिर भी प्रॉम्प्ट करना है तो एडिशनल परचेस कर, ही विल बाय ओनली इफ यू डिक्रीज द प्राइस, अदरवाइज ही विल नॉट बाय. वही लॉजिक है, राइट, इन ऑर्डर टू सेल मोर यू हैव टू डिक्रीज द प्राइस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट. आगे, सो जब भी आपको डिमांड कर्व ऐसे दिखेगी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिमाग में क्लिक होनी चाहिए ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म है. एंड जब भी आपको डिमांड कर्व ऐसे दिखेगी डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो अगर ये फर्म्स की डिमांड कर्व है, तो फर्म की डिमांड कर्व अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो ये इट इज नॉट ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म, इट इज, राइट, विच फर्म, इट इज इम्परफेक्ट. इसमें भी एग्जाम्पल, डिमांड कर्व देख के समझ में आ गया, इट इज इम्परफेक्ट मार्केट. दिस इज अनदर डिमांड कर्व, D1 एंड D2. पहले तो दिस इज अ डिमांड कर्व ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, D1 एंड D2. ठीक है, D1 एंड D2 ध्यान देना. D1 is a demand curve of, D1 is a demand curve of, right, which market? दोनों में कंपेयर करना है. सपोज मैं बोलता हूं these are the demand curve of two markets, one is monopoly and another is monopolistic. या मैं तीसरी डिमांड कर्व निकालता हूं लाइक दिस इज डिमांड कर्व 3, थर्ड इज परफेक्ट. देखते हैं, मैंने बोला टेल मी विच डिमांड कर्व बिलोंग्स टू विच मार्केट, विच डिमांड कर्व बिलोंग्स टू विच मार्केट. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कौन सा मार्केट है? परफेक्ट कंपटीशन. ये किसकी डिमांड कर रहे? परफेक्ट कंपटीशन. लिख लेना. जो सबसे ज्यादा स्टीपर है तीनों में, सबसे ज्यादा स्टीपर कौन से? D1. मतलब वहां पे इलास्टिसिटी सबसे कम है एज कंपेयर टू दैट. मोनोपोली के केस में इलास्टिसिटी सबसे कम होती है बिकॉज देयर आर लेस क्लोज सब्सटीट्यूट. वो अकेला सेलर रहता है, वो बोलेगा परचेस करना है तो कर, नहीं करना है तो चले जा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो उसके केस में, राइट, प्राइस इलास्टिसिटी कम रहती है. सो D1 अगर आपको समझ में आता है, मोर द फ्लैटर मोर इज द इलास्टिसिटी, लेसर द फ्लैटर लेस इज द इलास्टिसिटी. सबसे फ्लैट कौन सी? D3. वहां पे सबसे हाईएस्ट इलास्टिसिटी इनफाइनाइट. सो दैट इज परफेक्ट कंपटीशन. अब D1 एंड D2 में विच इज मोर इलास्टिक? D2 is more elastic than D1. D2 curve is more elastic than the D1. So in case of monopoly and monopolistic, which market has more elasticity? Monopolistic has more elasticity because there are several close substitutes selling differentiated product. Advertisement वगैरह होती है तो वहां पे, right, elasticity ज्यादा होती है. If you charge higher price than others, right, your demand will contract drastically because, right, वहां पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं. तो D2 इज ए मोर इलास्टिक देन D1, सो आई विल से इट इज ऑफ मोनोपोलिस्टिक. दिस इज मोनोपोलिस्टिक मार्केट फर्म एंड ये है मोनोपोली की. दिस इज अनदर एग्जांपल. आइडेंटिफाई द डिमांड कर्व. कौन से मार्केट की डिमांड कर्व कौन सी है? ठीक है, आगे नेक्स्ट. सो आगे चलते हैं. ठीक है, एक्चुअली दिस इज ऑफ द मार्केट चैप्टर, बट यस, डिमांड कर्व की बात करता हूं तब मैंने बोलना चाहिए. तो ये मत बोलना कि डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग. जनरली इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. In case of perfect competitive firms, it is horizontal line parallel to x axis. ठीक है, आगे. और जब जब जो हम 11th या 12th में डिमांड कर्व देखते थे वो कौन से मार्केट की होती थी? इम्परफेक्ट मार्केट, विच इज एक्चुअली द रियलिटी. ठीक है, आगे नेक्स्ट. अब हम समझेंगे मेथड्स ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी.
methods of measuring the price elasticity. तो यहाँ पे एक रिमार्क में लिख लेना ये वर्ड, यहाँ पे he can sell, he is not required to decrease the price to sell more. ऐसा मार्केट जिसमें प्राइस कम करने की जरूरत नहीं, फिर भी आप ज्यादा सेल कर सकते हो, कौन सा मार्केट होता है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. और यहाँ पे he is required to decrease price to sell more. All other markets में you have to decrease the price if you have to sell more. ठीक है, आगे मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. उसमें से एक तो एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू हमने की है. मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, देखते हैं. first method is like from the definition itself. What is the definition of the price elasticity? Responsiveness of quantity demanded with respect to change in the price of the commodity. Price changes, right? उसके वजह से डिमांड कितने से चेंज होती है, that is price elasticity. So that definition उसको बोला जाता है परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड, या रेशियो मेथड. क्या क्या बोला मैंने? द डेफिनेशन इज दिस मेथड एक्चुअली, परसेंटेज मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड और रेशियो मेथड. इसमें प्राइस इलास्टिसिटी इज कैलकुलेटेड एज, जो अभी तक हम सीख रहे थे, इट इज परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड. न्यूमरेटर इज ऑलवेज क्वांटिटी डिमांडेड, आंख बंद करके, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, खुद की प्राइस. इफ आई सॉल्व दिस इक्वेशन, मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना, ये इक्वेशन हम कॉपी करते हैं. And I get a shortcut. How to find out percentage change in the quantity demanded? देखते हैं कैसे ढूंढा जाएगा percentage change in the quantity demanded. It is new quantity demanded, right? New quantity demanded minus old quantity demanded upon old quantity demanded, right? How we find out, right? Percentage change in the quantity demanded. हम कैसे find out करते हैं percentage change in the quantity demanded? New quantity minus old quantity upon old quantity, always with respect to old quantity. Multiply by 100, percentage चाहिए, बराबर, divided by percentage change in the price. How will you find out percentage change in the price? Same, new price minus old price upon old price, multiply by 100. Multiply by 100. 100 cancel होगा. Therefore, can I say it is, right, new quantity minus old quantity upon, या यही लेना चाहिए था मैंने, ओके, मैं लिखता हूं कॉपी करने से. न्यू क्वांटिटी
न्यू क्वांटिटी डिमांडेड माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिनोमिनेटर जब ऊपर लोगे तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, बराबर, मल्टीप्लाई बाय ओल्ड प्राइस अपॉन राइट न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। थोड़ा मैं इसको रिशफल करता हूं लाइक दिस, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। I can also write this formula, new quantity demanded minus old quantity demanded. I can say change in the quantity demanded. This is absolute change, not percentage change. Percentage लिखना हो तो मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है, absolute change in the quantity demanded upon absolute change in the price of the commodity multiply by old price upon old quantity. This is the simple formula. If I solve this equation or this formula, मुझे ये मिलता है. So the formula is this. जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है, हम परसेंटेज ढूंढते नहीं बैठेंगे, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे. और दिस, ठीक है. देन सो एग्जाम्पल ध्यान देना, बिकॉज इसी एग्जाम्पल से मैं सब मेथड समझाऊंगा. एग्जाम्पल, व्हेन प्राइस was 100, quantity demanded was 1000. So this is old price, old quantity. When price decreases to 80, quantity demanded increases to 1400. How will you find out price elasticity? Find out price elasticity. One option, one can find out percentage change. कैलसी इको में कैलसी चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के रहते, कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेंगे. सो 80 minus 100, 80 minus 100, 20 upon 100. आप परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे? दिस इज ऑप्शन वन, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड. देखो यहां पे मैंने परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड लिखा था, अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस. So how will you find out percentage in quantity demanded? 80 minus 100 upon 100 with respect to old. अच्छा प्राइस का परसेंटेज है, मैं नीचे लिखता हूं, डिनोमिनेटर में रहेगा वो, मल्टीप्लाई बाय 100. This is percentage change in the price. Now percentage change in the quantity demanded. New quantity demanded is 1400, old is 1000 divided by 1000 multiply by 100. So this is 40% change, positive change. Increase हुई ना तो positive change of 40%, and this is negative change of 20%. And therefore say, I will say my price elasticity is minus 0.2, जिसको हम इंटरप्रिटेशन के लिए +2 बोलते हैं, mod value लेते हैं, because always price elasticity is negative and we ignore the negative sign. So I will be saying this commodity has elasticity is equal to 2. इसका मतलब if price changes by 1%, quantity demanded of this commodity will change by 2%. Twice change होता है quantity demanded में. Price changes by 10%, quantity demanded will change by 20%. Price changes by 20%, demand will change by 40%. Like that. समझ में आ रहा है? दूसरी बात, this commodity is a luxury.
This commodity is a comfort because elasticity is greater than 1. Relatively elastic commodity है. Small change in the price, just 20% change in the price brings more than 20% change in the demand. मतलब ये लग्जरी है. ठीक है. और दूसरा ऑप्शन क्या था? और मैं ऐसे निकाल सकता था, चेंज इन द राइट प्राइस, चेंज मैं चेंज निकालता, नॉर्मल चेंज. सो चेंज इन द प्राइस कितना है? 80 minus 100 minus 20. Change in the price is minus 20. Change in the quantity plus 100. Sorry, plus 400. Change ढूंढो ना, change. Delta stands for change. 80 minus 100. Change in the price is 20. Change in the quantity demanded is 400. Therefore, another formula. Change in the quantity demanded upon change in the price multiply by क्या करोगे? Old price upon old quantity. Reciprocal हो जाता है ना इसलिए. Old quantity demanded. Therefore, change in the quantity demanded is 400 plus 400 plus 400. Change in the price is negative 20. Price has decreased. Multiply by old price, which was 100, divided by old quantity, which was 1000. Old price was 100, old quantity was 1000. So if you solve this equation, it is 400 divided by 20 multiplied by 1000 divided by 1000. Answer is minus 0.2, minus 2, which is 2 for my analysis. So instead of finding out the percentage and everything, this formula is simple. Find out change in the quantity upon change in the price, multiply by old price upon old quantity. This is the मैं कोई भी क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा. दिस इज वन वे ऑफ फाइंडिंग प्राइस इलास्टिसिटी यूजिंग परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनल मेथड. Another method is if change is very very small, like this is your demand curve. ध्यान देना. This is your demand curve and the change is very small. This is A, this is B. So A and B are the 2 points on the demand curve. They are so small that they seem to be a single point. क्या बोला? When change is so small that they seem to be a single point. A point पे प्राइस अलग है, डिमांड अलग है. B point पे प्राइस अलग है, डिमांड अलग है. However, they are so small, that change is so small that they are like a single point. ऐसे केसेस में we use price, right? When change is very small, हम करते point elasticity. Point elasticity. When change is very very small. वेरी वेरी स्मॉल. सो ये पता होना चाहिए मेथड कौन सी कहां पे यूज करनी है. एग्जाम्पल, और मॉड्यूल में ये 2-3 एग्जाम्पल है, मैं बोलता हूं, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है. वैल्यू ऑफ ए कार वॉज 10 lakhs. Price of a car is 10 lakhs. They increase or they decrease the price to 9,99,000. They decrease the price to 9,99,000. Which method of the price elasticity should be considered? Now the change, आप बोलोगे सर rupees 1000 का change है. However, this 1000 is with respect to 10 lakhs. So 1000 with respect to 10 lakhs is almost just 0.1% change. If you plot on a graph, normal graph, you will, right, change is just 0.1%, 0.1% भी नहीं है.
फ्रैक्शन 1% का 10th फ्रैक्शन, 10th पार्ट. सो यू कैन फाइंड, राइट? आप बोलोगे सर 1000 रुपीज का फर्क है, बट 1000 विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? 1000 विथ रिस्पेक्ट टू 10,000 इज 10%. 1000 with respect to 5,000 is a 20% bigger change, but 1000 with respect to 10 lakhs is just 0.1%. So ऐसे केसेस में जहां पे चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल, माइन्यूट चेंज, एज सच कि दे आर सिंगल पॉइंट ऑन ए डिमांड कर्व, ऐसे केसेस में we follow which method? Point elasticity. And if you remember, point elasticity can be found out, right, by using a formula lu, L upon U. Length of lower segment of the demand curve upon length of upper segment of the demand curve. Example, ध्यान देना. और ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट द मार्केट चैप्टर, ये जो निकाल रहा हूं, इसलिए ये पता ही होनी चाहिए. देयर इज नो ऑप्शन. एंड अगेन हॉट फेवरेट फॉर द एमसीक्यूज. बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस डायग्राम पे, बहुत सारे. एंड मार्केट में बेस है ये डायग्राम. सपोज देयर इज अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व. इफ देयर इज अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, ठीक है, मैं पॉइंट इलास्टिसिटी यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देना, अलग से लिखता हूं पॉइंट इलास्टिसिटी. In case of straight line demand curve, like this is a demand curve, DD is a demand curve. Actually ये point possible नहीं है, because price, this is price axis ना, price cannot be zero, and ये भी possible नहीं होता है because demand cannot be zero, but graphically हम present कर सकते हैं. Try to understand. Extreme point सही है. So this is quantity demanded, straight line downward sloping demand curve. ये demand curve कौन से मार्केट की है? इम्परफेक्ट मार्केट की. अगर आगे से सोचना चाहिए आप लोगों ने, यार ये इम्परफेक्ट मार्केट की भी यही होती है, एंड विच इज रियलिटी. ठीक है, आगे दिस इज मिड पॉइंट. सो दिस पॉइंट डिवाइड्स दिस डिमांड कर्व इनटू टू इक्वल पार्ट्स. इसको भी मैंने बाइसेट कर दिया, एंड इस अपर पोर्शन को भी बाइसेट कर दिया. सपोज दिस इज पॉइंट ए, या ऐसे लिखता हूं, पॉइंट ए जहां पे डिमांड कर्व प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड एक्सेस को इंटरसेक्ट करती है. डिमांड कर्व जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड एक्सेस को, मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, दैट पॉइंट इज ए. दिस इज पॉइंट बी, सी, डी एंड ई. 5 पॉइंट्स. E is the point where demand curve intersects price axis, y axis. Price axis मतलब y axis, demand quantity demand axis मतलब x axis. Suppose this is 1 centimeter, this is 1 centimeter, 1 centimeter and 1 centimeter. So length of demand curve AE, total length of demand curve AE is 4 centimeters, and उसको मैंने अलग अलग पॉइंट्स ड्रॉप, ये 4 ही पॉइंट्स नहीं है, देयर आर मिलियंस ऑफ द पॉइंट्स, मिलियंस ऑफ द कॉम्बिनेशंस, बट मैंने 4 मेरे स्टडी के लिए लिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड. Every point on a demand curve gives one combination of the price and the quantity demanded. अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. If I have to find out the price elasticity at a point, example B, मैं B पे ढूंढता हूं. So I have to find out length of lower segment, that is यहां पे अगर मैं प्राइस इलास्टिसिटी ढूंढता हूं, लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट पॉइंट के नीचे, सो इट इज BA अपॉन लेंथ ऑफ अपर सेगमेंट BE, BA upon BE, which is equal to 1 centimeter upon 3 centimeter. Can I say it is less than 1? Yes.
the elasticity at point B is less than 1. Elasticity at point C. Point C divides the demand curve into two segments, CA and CE. समझ में आ रहा है? तो I have to find out below that point, below portion की length, that is CA, and upper portion की length, right, CE. 2 centimeter upon 2 centimeter is equal to 1. The elasticity at a midpoint of the demand curve, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, elasticity at a midpoint of straight line demand curve is 1. Unitary elastic. आगे then elasticity at a point D. D का ढूंढना है ना, so lower segment is DA. DA upon upper segment DE. 3 upon 1 greater than 1. So elasticity at a point D is greater than 1, relatively elastic. At point A, length of lower segment 0 upon length of upper segment 4. Lower segment ही नहीं, 0 upon anything is 0. Right? Elasticity at point E, length of lower segment 4, length of upper segment है ही नहीं कुछ upper segment. Anything divided by 0 cannot be defined infinite. अब क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, ये समझ में आ गया? So can I say the price elasticity at a point where demand curve intersects quantity axis, x-axis is 0. The elasticity at a point where demand curve intersects price axis, y-axis is infinite. Elasticity at midpoint is 1. Elasticity above the midpoint is greater than 1. Elasticity below the midpoint is less than 1. Are you getting my point? So can I say, try to understand. ठीक है, यहां पे इलास्टिसिटी 1, राइट, यहां पे 0, यहां पे इंफिनिटी. So as you move upward on a demand curve, elasticity increases. As you move upward on a demand curve, price elasticity increases. As you move downward on a demand curve, elasticity decreases. Observation. At midpoint, elasticity is 1, unitary elasticity. At intersection at x-axis, elasticity is 0. Intersection at y-axis, elasticity is infinite. Cannot be defined. This portion, यहां पे कोई भी पॉइंट होने दो, below the midpoint till intersection point, elasticity is less than 1. And above the midpoint, but up to the intersection point, the product faces greater than 1 elasticity. E is equal to 1. यहाँ पे E is equal to 0. E elasticity, price elasticity. E is equal to infinite. Try to understand. So इस डायग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, price elasticity at a midpoint is 1. Price elasticity at a intersection point of x-axis 0. Price elasticity at a intersection of y-axis infinite. Price elasticity below midpoint less than 1. Price elasticity above midpoint greater than 1. As you move upward on demand curve, price elasticity increases. As you move downward on a demand curve, price elasticity decreases. समझ में आ रहा है? तो can I say this is relatively inelastic? Relatively inelastic, right? Less than 1. This is relatively elastic. Elastic. Greater than 1. This is perfectly inelastic. So
आप देख सकते हो इलास्टिसिटी इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो. परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक. एंड यहाँ पे राइट परफेक्टली इलास्टिक. सो देन यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना, ये मैं मार्केट में समझाऊंगा, जस्ट एक नोट. दिस इज वन प्राइस ओपी, बराबर ना. दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड एंड सोल्ड ओक्यू. लिख लेना नोट, इंपॉर्टेंट नोट लिख के दे रहा हूं. इसका मैं इन डिटेल मार्केट में समझाऊंगा, बट अभी ये डायग्राम निकालिए तो ये मुझे हमेशा याद आता है, बिकॉज ये क्वेश्चन हॉट फेवरेट है. नोट एट OQ आउटपुट total revenue is maximum. There are multiple outputs ना. एक आउटपुट OQ से लेस है, OQ से लेस है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब मैं आपको टेंडेंसी समझा रहा हूं, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को. टेंडेंसी समझा रहा हूं. ये डायग्राम है, ये डायग्राम में कॉपी पेस्ट करता हूं, ध्यान देना. बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं. एंड यू विल थिंक इन डिफरेंट वे. जिस एंगल से मैं सोच रहा हूं ना, आपने कभी सोचा नहीं होगा. ध्यान देना. डायग्राम देखी है आपने, बहुत बार देखी है, बट सोचने का तरीका देखो. ठीक है, देखो यहाँ पे where on a point on a demand curve, obviously slope, इतना तो आपको मैथ्स में पता होगा, मैथ्स में आपने इतना तो सीखा होगा कि अगर कोई कर्व है तो स्लोप एट दिस पॉइंट इज डिफरेंट एट देन दिस पॉइंट, डिफरेंट एट दिस पॉइंट, डिफरेंट एट दिस पॉइंट. स्लोप्स अलग अलग होते हैं, बराबर. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. सो आगे at every point right of a demand curve elasticity is different. लाइक मिड पॉइंट पे 1 है, मिड पॉइंट के अबो ग्रेटर देन 1 है, मिड पॉइंट के नीचे लेस देन 1 है. कहां पे इन्फिनिट है, कहां पे 0 है. एट एवरी पॉइंट देयर इज ए प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. एग्जांपल, एक पॉइंट हमने लिया था, ये वाला मिड पॉइंट. यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पे एक पॉइंट था, बराबर. दिस इज ऑल्सो वन कॉम्बिनेशन ऑफ द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड and offered for sale. This is also another. ठीक है. So there are three combinations. Combination suppose A, combination B and combination C. So C level पे अगर combination C पे काम कर रहे हो आप, if you are on C point of the demand curve, मतलब आपकी price, try to understand, your price is P1 and the quantity demanded is OQ1. At if you are on a B point of a demand curve, मतलब प्राइस आप ऑफर कर रहे हो P2 एंड डिमांड है O, राइट, OQ2. OP2 and OQ2 is the demand. Your revenue, try to understand, your revenue is price multiplied by quantity demanded and sold, बराबर. So at point A, what is your total revenue? At point A, या पहले ऊपर का लेता हूं, at point C, what is your total revenue? This is price. What is price? OP1 multiply by quantity OQ1. So can I say area OP1 CQ1, this area. When price is at point C, C क्या point है? Price is OP1, quantity demanded and supplied is OQ1.
सो व्हाट इज योर रेवेन्यू एट दिस, ये आपका रेवेन्यू है, ठीक है। एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी प्राइस इज, व्हाट इज प्राइस एट पॉइंट बी, प्राइस इज ओपी, प्राइस इज ओपी, प्राइस आपकी ओपी है ये वाला, ओपी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, ओक्यू। सो एरिया, एरिया ओ पी ए क्यू, एरिया ओ, ये ओ पी ए क्यू, दिस एरिया वाइड से, ठीक है। सो दैट इज सेल्स व्हेन एट ए पॉइंट बी, एट पॉइंट सी, सी हुआ बी हुआ, अब ए पे आते हैं। व्हाट इज द रेवेन्यू एट सी, प्राइस इज OP2, price is OP2 at point A, sorry, price is OP2 and you can find maximum quantity is demanded and sold because price is less, ठीक है, OQ2. So what is the area, this is your area, this is the area, that is OP, OP2 and ये point आपका B है, BQ2, this is the area। मैंने 3 पॉइंट्स उठाए डिमांड करके, एक मिड पॉइंट है, एक मिड पॉइंट के ऊपर है, एक मिड पॉइंट के नीचे है। ऑब्वियसली अगर 3 पॉइंट उठाए तो आपको 3 एरिया मिल जाएंगे, 3 एरिया मतलब 3 रेवेन्यूज मिल जाएंगे, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स। आई थिंक समझ में आता है जब मैं रेवेन्यू बोल रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं प्राइस एक्स एक्सिस मल्टीप्लाई बाय वाई एक्सिस कर रहा हूं, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज सेल्स रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। सो ये अगर किसको नहीं समझ में आ रहा है तो बोलने में कोई फायदा नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको रेवेन्यू ढूंढना नहीं आ रहा है तो। टोटल, नाउ if you find out the actual area, this area is highest, this area is highest, ये वाला एरिया, ये एरिया सबसे हाईएस्ट होगा, मींस एट मिड पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व टोटल रेवेन्यू इज, ये एरिया लार्जेस्ट होगा तीनों एरियाज में। मतलब इस पॉइंट पे अगर मतलब आप ओपी प्राइस पे ओक्यू क्वांटिटी डिमांड हो रही है, यहां पे टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, यहां पे टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है। अब ध्यान देना, मतलब यू शुड सेल ओक्यू क्वांटिटी एज ए सेलर, मैं बिजनेस मैनेजर हूं, मैं प्लान कर रहा हूं मेरा रेवेन्यू कहां पे मैक्सिमम होगा, मेरा रेवेन्यू ओपी प्राइस पे जब ओक्यू क्वांटिटी डिमांड करके सेल करूंगा तब मेरा रेवेन्यू ज्यादा होगा। नाउ आई एम इन दिस पॉइंट, मैं पॉइंट सी पे हूं, मैं पॉइंट सी पे हूं, ध्यान देना, मैं रिलेटिवली इलास्टिक हूं, मैं लग्जरीज में डील कर रहा हूं। हाउ कैन आई इंक्रीज माई रेवेन्यू, मैंने लग्जरी के केस में क्या बोला था, हाउ कैन आई इंक्रीज माई रेवेन्यू, आई शुड डिक्रीज द प्राइस। सो जब मैं प्राइस डिक्रीज करूंगा, आई विल कम डाउनवर्ड ऑन द डिमांड कर्व और आई विल कम एट पॉइंट ए, मैं सी से ए पे आ जाऊंगा। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, बिकॉज ये वाला पोर्शन रिलेटिवली इलास्टिक है, आई एम डीलिंग इन लग्जरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बहुत अच्छी कंसेप्ट समझा रहा हूं, राइट? ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, आई एम इन एट पॉइंट, राइट? आई एम ऑडिबल ना? नहीं तो मैं मेरा बात कर रहा हूं, प्लीज चेक वेदर आई एम ऑडिबल और नो। ठीक है, समवन हैज टाइप दैट आई एम नॉट ऑडिबल, ओके गुड। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, हमने सीखा है कि अगर आप लग्जरी में डील करते हो तो यू शुड डिक्रीज द प्राइस टू इंक्रीज द रेवेन्यू। मतलब यू आर एट दिस पॉइंट, आप ऊपर वाले पॉइंट पे हो, यहां कहां पे हो आप, यहां कहां पे हो, अगर आप इस पोर्शन पे हो, यू आर, योर कमोडिटी इज इलास्टिक इन द नेचर, यू आर डीलिंग इन द लग्जरी, तो हाउ टू इंक्रीज द रेवेन्यू, आपको कौन से पॉइंट पे आना है, मिड पॉइंट पे आना है। अगर आपको मिड पॉइंट पे आना है तो आपको नीचे आना है, डिमांड करके नीचे आना है, यू हैव टू कम डाउनवर्ड, नीचे आना है, मतलब यू हैव टू डिक्रीज द प्राइस। इसलिए बोला जाता है इफ
you are dealing in a relatively elastic commodity, you should decrease the price to increase the revenue. OP1 प्राइस से OP प्राइस कर दो, your total revenue will be maximum, वो increase हो जाएगा. अगर वही आप इस पोर्शन में सेल कर रहे हो, आप इस पोर्शन में बिलो द राइट मिड पॉइंट, मींस योर इलास्टिसिटी इज रिलेटिवली इनइलास्टिक लेस देन 1, आप नेसेसिटीज में डील कर रहे हो. और मैंने बोला था नेसेसिटीज के केस में व्हाट इज प्राइस स्ट्रेटेजी, इंक्रीज द प्राइस टू इंक्रीज द रेवेन्यू. आप कहां पे, यहां पे काम कर रहे हो, सपोज यहां कहां पे आपको रेवेन्यू इंक्रीज करना है, आपको ऊपर जाना पड़ेगा. मैक्सिमम रेवेन्यू कहां पे रहता है, मिड पॉइंट पे रहता है. तो आपको ऊपर जाना होगा, डिमांड कर्व पे ऊपर जाना होगा. अगर आपको डिमांड कर्व पे अपवर्ड जाना है तो आपको डिमांड कॉन्ट्रैक्ट करनी है. इसका मतलब अपवर्ड मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व मतलब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. आपको प्राइस इंक्रीज करनी होगी. डोंट कीप प्राइस OP2, कीप प्राइस OP1. वही तो हमने प्राइस इलास्टिसिटी में सीखा. ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं रिलेट कर रहा हूं दो चीजें. और ये जो समझा रहा हूं ना, कोई नहीं समझाएगा, ये भी लिख के देता मैं तुम्हें, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट वंस अपॉन ए टाइम. किसी ने नहीं बोला था, दिस इज ऑब्जर्वेशन, दिस इज रेफरेंस बुक. बहुत सारे रेफरेंस बुक पढ़े तब समझा ये चीजें. क्या बोल रहा हूं ध्यान देना. प्राइस जहां पे मिड पॉइंट ऑफ ए डिमांड कर्व पे प्राइस इलास्टिसिटी इज 1 एंड वहां पे टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है. एंड इफ यू वांट टू अचीव हाईएस्ट रेवेन्यू यू हैव टू बी ऑन मिड पॉइंट ऑफ योर डिमांड कर्व. बट अगर आप ऊपर हो कहां पे, मींस यू आर लाइक आप योर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, तो आपको प्राइस कम करो, सो आप नीचे आ जाओगे डिमांड कर्व पे और मिड पॉइंट पे आके रुक जाओ. अगर आप नीचे हो मतलब योर प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक, लेस देन 1 इलास्टिसिटी, लेस देन 1 इनइलास्टिक, तो उनके लिए हम बोलते हैं प्राइस इंक्रीज करो तो दैट आप मिड पॉइंट पे आके रुकोगे. एंड दैट इज अ कंसेप्ट. ये जो डायग्राम मैंने अभी समझाई ना, दैट इज अ कंसेप्ट बेसिकली. सो राइट, ये जो मैंने अभी नोट लिख के दिए, किधर गई वो नोट, ये वाली नोट. एट OQ आउटपुट टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम. तो आपको डिसाइड करना है, अगर आप रिलेटिवली इलास्टिक कम्युनिटी में डील कर रहे हो तो यू शुड डिक्रीज द प्राइस टू इंक्रीज योर रेवेन्यू. इफ यू आर डीलिंग इन इनइलास्टिक कम्युनिटीज मतलब आप कहां पे नीचे हो, मिड पॉइंट के नीचे हो, आपको मिड पॉइंट पे जाना है, यू शुड इंक्रीज द प्राइस टू अचीव द मैक्सिमम रेवेन्यू. दिस इज द कंसेप्ट. रोलिंग की मैंने प्राइस इलास्टिसिटी से. दिस डायग्राम हैज वेरी वेरी इंपॉर्टेंस इन द मार्केट चैप्टर. लास्ट जो चैप्टर है उसपे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है. आई थिंक क्लियर होगा. सो at which point the total revenue is maximum, at a mid point of the demand curve where price elasticity is 1, वहां पे total revenue maximum होता है. and every seller will try to reach at that point. so जो relatively elastic commodity में deal कर रहा है वो right upper portion पे काम कर रहा है, सेल कर right, तो he should decrease the price and should try to come down, downward movement. प्राइस कम करेंगे तो डिमांड एक्सपांड होगी, रेवेन्यू विल इंक्रीज. एंड जो नीचे है इनइलास्टिक पोर्शन में है, नेसेसिटीज में राइट, उसने क्या करनी चाहिए, प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी एंड ही विल कम टू द मिड पॉइंट जहां पे रेवेन्यू मैक्सिमम होगा. एंड जो मिड पॉइंट पे है, ऑलरेडी मिड पॉइंट पे है, तो उसको कोई टेंशन है क्या, नहीं, उससे ज्यादा रेवेन्यू तो होता नहीं. यूनिटरी इलास्टिसिटी में हमने देखा है दैट रेवेन्यू इज मैक्सिमम, आप कुछ भी करो. सो राइट, दैट इज द कंसेप्ट. आगे 7:21 हुआ है, ठीक है. द लास्ट पॉइंट, जस्ट 2 मिनट एंड देन इट्स डन. तो मैंने आपको बोला इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, जिस पॉइंट पे हमें इलास्टिसिटी ढूंढनी है राइट, वहां से लोअर सेगमेंट का लेंथ ढूंढो, अपर सेगमेंट का लेंथ ढूंढो. लो L upon U is a price elasticity. In case of B, like non-linear डिमांड कर्व, स्ट्रेट लाइन नहीं है. हाउ टू फाइंड आउट, ये आपको आपने 12th में सीखा है, ठीक है. सपोज दिस इज योर डिमांड कर्व एंड यू हैव टू फाइंड आउट इलास्टिसिटी एट दिस पॉइंट. हाउ विल यू फाइंड इट आउट, draw a tangent at that point.
draw a tangent at that point in such a way that it will meet both the axes. It will meet both the axes, and then find out the length of lower segment divided by length of upper segment. You will get the elasticity. वही formula है. However, right, if you try to extend it, it will not meet x-axis. If you try to extend it, it may not meet y-axis. या तो एक एक्सिस को मीट करेगी, दूसरे एक्सिस को मीट नहीं करेगी. एंड देयरफॉर, राइट, हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे हमें इलास्टिसिटी ढूंढनी है. अब ध्यान देना, मैं इसी डायग्राम को इलाबोरेट करने वाला हूं. ठीक है, जो लेक्चर छोड़ के गए तो जाने दो. कोई लोग देखा है मैंने, 3-4 बच्चे मिसिंग है. अब मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान देना. एक डायग्राम निकालता हूं और आप मुझे बोलो इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा कहां पे है. बहुत कॉमन सेंस की बात है. And I am trying to mix the concepts. This is demand curve. You have to find out elasticity at this point A. You have to find out elasticity at this point B. You have to find out elasticity at this point C. या मैं C को थोड़ा नीचे लेता हूं, मुझे थोड़ा इजी जाएगा. C A पॉइंट पे ढूंढना है. ओ माय गॉड, ठीक है. ए पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी. ए पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की. नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, L अपॉन U. बराबर. लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट is greater than length of upper segment. This is greater than 1. ठीक है, at this point. Oh, कुछ ऐसे निकालना होगा. यहां पे लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट सपोज इक्वल टू लेंथ ऑफ अपर सेगमेंट है, यहां पे 1 है. एंड इस पॉइंट पे लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट दिख में आ रहा है इज लेस देन लेंथ ऑफ अपर सेगमेंट. यहां पे इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. सो जैसे आप नीचे आते हो डिमांड कर्व पे, ग्रेटर देन 1, 1, लेस देन 1, इलास्टिसिटी डिक्रीज हो रही है. तो फिर कोई भी linear curve हो या non linear curve हो, if you come downward on a demand curve, your elasticity will decrease, and if you move upward on a demand curve, your elasticity remains, like, increases. At midpoint elasticity is maximum. So even ये थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, ठीक से दिख नहीं रहा है, बट आई वांट टू टेल यू कि linear हो या non linear हो, my principle remains same. ठीक है. So मैंने 2 मेथड समझाए of calculation, percentage method and point elasticity method. Point elasticity कहां पे यूज किया जाता है? When change is very small. Again, दूसरा, last, what is the formula of calculating price elasticity using percentage method? Change in the quantity upon change in the price multiply by old price upon old quantity. And what is the price calculation of price elasticity under point method? Length of lower segment upon length of upper segment. ठीक है. एंड दिस डायग्राम जो भी मैंने अभी डिस्कशन किया लास्ट के 10-15 मिनट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. आपको सब पता है, मुझे पता है, बट ये चीजें नहीं पता. दैट आई आल्सो नो. सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आई एम ट्राइंग टू मैच द थिंग्स. जो हमने प्राइस इलास्टिसिटी में देखा कि लग्जरी के केस में प्राइस डिक्रीज करनी चाहिए, रेवेन्यू इंक्रीज होगा, यहाँ पे प्रूव हो रहा है वो. जब प्राइस इनइलास्टिक केस में हम बोलते हैं प्राइस इंक्रीज करो, रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, यहाँ पे प्रूव हो रहा है. इवन इफ यू फॉरगेट दैट, बाय चेकिंग दिस डायग्राम यू कैन डिसाइड वेदर you should increase the price or decrease the price. अगर आप upper portion पे हो, mid point के ऊपर हो, in order to increase the price, right, sales, decrease the price, revenue increase करने के लिए. अगर नीचे हो, मतलब inelastic portion में हो, in order to increase the sales, आपको ऊपर जाना होगा, increase the price. समझ में आ रहा है? अगर वहां से भी नहीं समझ में आता तो इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा. And at midpoint, total revenue is maximum. On this note, I will end today's lecture. कल मैं, right, और 2 मेथड से उस पे एक्सप्लेन करूंगा. एंड वी विल एंटर इनटू इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी. उनको इतना टाइम नहीं लगेगा. थैंक यू.